Okay, guys, in last session we discussed some example which is based on Newton first law and second law from the textbook illustration. Now in today's session we start a solution of this example which is based on again first law and second law, and from the exercise. Okay, let's we discuss first example number 5.3. Here the number of statements are given to us. We solve one by one, and in all these cases we just gives the magnitude and direction of net force. Underline magnitude and direction of net force. In this whole these cases we just gives the answer for this one, F net. F net को आपको डायरेक्शन देनी है और मैग्नीट्यूड, ठीक है. Net force acting on a stone of mass 0.1 kg. So mass of the stone is what? 0.1 kg. First one, just after it dropped from the window of a stationary train, मतलब you can say this is the train which is at rest. Okay, यहाँ पे स्टोन है. What is this mass? आपने रिलीज कर दिया, यहाँ पे स्टोन है उसको रिलीज किया. So after releasing the stone moves downward direction. Stone moves downward side. Okay, अगर ऐसे मतलब स्टोन हवा में आ जाएगा, it is into the air. If the stone is in the air, then what is the force? F is equal to mg. In which direction? Downward side. You just put the value 0.1 and g is equal to take 10. So consider g is equal to what? 10 meter per second. Then answer is what? 0.1 into 10. Answer 1 Newton. In which direction? डाउनवर्ड. ट्रेन रेस्ट पे आपने ऐसे स्टोन को रिलीज कर दिया मतलब द स्टोन इज इनटू द एयर एंड एनी ऑब्जेक्ट इज इनटू द एयर. व्हाट इज द फोर्स ऑन इट? mg, एज वी नो. सेकेंड प्रॉब्लम पे चलते हैं. Just after it is dropped from the window of a running train at a constant speed. Now the speed of the train is constant and consider it is a window. फिर से आपने रिलीज कर दिया, तो रिलीज किया तो जस्ट आफ्टर रिलीजिंग इट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड इज व्हाट? 36 किलोमीटर पर आवर, बट इट्स एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड साइड. विच एक्सेलरेशन? g, बिकॉज इट इज अगेन ड्रॉप्ड. ओके, तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट जो है मूव कुछ ऐसे होगा, लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, उसका पाथ इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वैसे स्ट्रेट लाइन में मूव होगा. इफ यू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, आप ग्राउंड से इसमें ऑब्जेक्ट को मूव कर, ऐसे ग्राउंड ऐसे ऑब्जेक्ट मूव होगा, इसमें कुछ ऐसे मूव होगा, लेकिन ये तो स्पीड कांस्टेंट है. तो इस पे पर एक्सेलरेशन तो जी है, तो फिर फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू अगेन mg. सो mg तो कितना आंसर है? 1 न्यूटन. तो इज इक्वल टू 1 न्यूटन. मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अगेन डाउनवर्ड. फिर से यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड. तो इस केस में भी ऐसा कुछ आंसर रहेगा. सी देखते हैं नेक्स्ट वन. जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ट्रेन इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऐसा मान के चलो यहाँ पे ट्रेन है, तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया. यू जस्ट ऑब्जर्व दिस स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम हियर. यू इफ आफ्टर रिलीजिंग द ऑब्जेक्ट्स, after releasing this stone, suppose stone is released somewhere here, so after releasing again this objects into the air, if any objects into the air, then there is only one acceleration. What is this acceleration? g. उसका acceleration कितना होगा? g. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वहां पे एक ही acceleration g, तो यहाँ पे भी acceleration होगा g. उसके पास कोई हॉरिजॉन्टल स्पीड हो सकती है, ऐसा नहीं बोला कि हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं है. acceleration है तो हॉरिजॉन्टल कोई स्पीड है. so if any objects is you consider this motion of any objects, then velocity have some previous memory, but acceleration doesn't have, as we studied in Newton's second law. What we studied in Newton's second law, if you find the acceleration at some instant, then you take the force at that instant only. Whatever the previous one, we are not counting. यहाँ पे प्रीवियस में एक्सेलरेशन स्टोन के पास कितना था? a था, बट आपने रिलीज किया उसके बाद कितना एक्सेलरेशन आ गया? g. इस a की कोई इफेक्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन में नहीं होगी, वेलोसिटी में हो सकती है. Velocity having some previous memory, but acceleration does not. You must be remember as we write this not in a Newton second law. Okay, तो यहाँ पे भी acceleration कितना है जी? तो वो पाथ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, पाथ चेंज हो सकता है, ठीक है. पाथ यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे स्ट्रेट पाथ है, यहाँ पे कुछ ऐसा पाथ है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा पाथ है. तो पाथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस पर कोई भी जगह पे फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू अगेन
mg। आपने इसका FBD बनाया तो FBD कुछ ऐसा बनेगा, F इज इक्वल टू mg। ओके, और कोई फोर्स ही नहीं है, और कोई फोर्स यहाँ पे ही नहीं है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इनटू देयर इज ओनली वन फोर्स इज प्रेजेंट, mg। सो आंसर अगेन कितना आएगा, 1 न्यूटन। व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, अगेन 1 न्यूटन। व्हाट इज द डायरेक्शन, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ऐसा कुछ आंसर रहेगा। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नाउ द लास्ट वन इज व्हाट, दिस ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन अ फ्लोर ऑफ अ ट्रेन। सो ऐसी ट्रेन है तो ऑब्जेक्ट्स को ऐसे ट्रेन के फ्लोर पे रखा है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो उसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट्स का भी एक्सेलरेशन कितना होगा, सेम ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स इज इनसाइड द ट्रेन। राइट नाउ इन दिस केस ऑब्जेक्ट्स इज इनटू द एयर, उसको रिलीज कर दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो है वो ट्रेन के फ्लोर पे ही है। सो ऑब्जेक्ट्स का भी एक्सेलरेशन कितना होगा, वॉट एवर द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। सो 1 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट्स आल्सो मूविंग, तो 1 मीटर पर सेकेंड है। एंड यू ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड, आप ऑब्जेक्ट्स को ग्राउंड से ऐसे देख रहे हो। ठीक है, द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू ट्रेन, अंडरलाइन दिस वन, स्टोन इज एट रेस्ट रिलेटिव टू ट्रेन। मतलब कि अगर आपने इस ऑब्जेक्ट्स को यहां से देख रहे हो तो यहां से देखो तो रेस पे लग रहा है, लेकिन ग्राउंड से देखो तो मूव होगा। मीन्स यू जस्ट कंसिडर यू आर इनसाइड द बस, you are inside the bus, and one bag is placed near to you, then with respect to you this bag is at rest. But if any person observe this bag from the ground, then with respect to this ground this bag is moving. So exactly similar situation. With respect to train, object is at rest, but with respect to ground this object is moving some acceleration A. Then how much force, net force applied on these objects we have to find here. So here we apply both this law, Newton first law and second law. Draw the FBD of these objects. तो FBD बनाते हैं तो इसका वेट कहाँ पे लगेगा, डाउनवर्ड। सो वेट डाउनवर्ड हुआ। तो यहाँ पे एक सरफेस कांटेक्ट में है, सो कांटेक्ट सरफेस पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हुआ नॉर्मल फोर्स। उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है ये, तो यहाँ पे कोई फोर्स होगा, कितना कौन सा है पता नहीं है, मान लो कि F फोर्स है, कौन सा फोर्स है वो पता नहीं है, ऐसे कोई भी मान लो कि F है। तो इस FBD को सेपरेट बना दो यहाँ पे। चलो तो सेपरेट FBD यहाँ पे अगर बनाते हो आप तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है mg, अपवर्ड फोर्स कितना है n। यहाँ पे कोई फोर्स प्रेजेंट है, कौन सा है वो पता नहीं है, तो F ले लो। उसका एक्सेलरेशन कितना है इस डायरेक्शन में, ये ऐसा कुछ है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट इज ओनली मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो वर्टिकल डायरेक्शन को काउंट करो। वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पे है। तो एज पर द न्यूटन फर्स्ट लॉ, एज पर द न्यूटन फर्स्ट लॉ एफ नेट इज इक्वल टू 0, मतलब कि एन इज इक्वल टू एम जी। तो नेट फोर्स में यहाँ पे एम जी का कोई रोल नहीं है, लग तो रहा ही है लेकिन कोई रोल नहीं है। ओके क्यों, और नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करेगा तो दोनों की इफेक्ट कितनी हो जाएगी, 0। सो वी हैव टू फाइंड ओनली एफ नेट। तो ये जो एफ है वही एफ नेट होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहा है, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो फिर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई होगा। इन केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। सो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, एफ पता नहीं है कौन सा, क्योंकि मूव करे तो कुछ तो फोर्स होगा ही, otherwise object does not move. If force is not present then object does not move. So यहाँ पे फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो माइनस 0 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स का मास मान लो कि m है, तो ऑब्जेक्ट्स का मास m, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन है, तो मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू m है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखो, m कितना है 0.1। नाउ a इज 1, ओके, सो आंसर इज व्हाट 0.1 into 1. So your answer is what, 0.1 Newton. This is the net force applied on objects. In which direction? Horizontal, right hand side. So this is the your answer. Now I am telling to you which force is actually applied here. This object is moving because of friction. Okay, up to this day actually we are not studied about the friction, but in the next chapter we studied about the friction. Right now this object is moving horizontally with the train because of friction. How this object is moving
and how the friction force is applied we discuss in a next chapter. So right now you don't worry about this, you just understand some force is applied on this one and this is equal to what, 0.1 Newton, and this one is a one calculation which is we have to write here for this object. Okay, when the object is lying on the floor of a train. Okay, so not this example. Okay guys, let's come to this next example from the exercise. Example number 5.5. A constant retarding force F is equal to 50 Newton is applied on the body. मतलब कोई body है, this one, suppose this is the one body. So constant force, retarding force F is equal to 50 Newton. This force is what? Retarding force. Okay, so retarding force is a opposite of velocity. That's called a retarding force. Is applied on a body of mass is equal to 20 kg. So mass 20 kg है. It's initially moving with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड. So उसकी initial speed 15 है. मान लो कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में v0 से मूव कर रहा है तो फिर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. दैट्स कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स. इट मींस एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा. इसका मीनिंग कुछ ऐसा हुआ, एक्सेलरेशन इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, सेम एज अ फोर्स. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हाउ लॉन्ग दिस बॉडी डज टेक टू स्टॉप. मतलब वो कब स्टॉप होगी, तो टाइम फाइंड करना. मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से सपोज मान लो कि यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0. सो दिस इज गिवन डेटा एक्चुअली, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. सो यू हैव टू फाइंडिंग आउट द टाइम. So what is this acceleration? That is a motion equation problem. Okay, so from this acceleration is equal to what? Force upon mass. What is this acceleration force? But direction is opposite means you take it is negative. डायरेक्शन अपोजिट, तो आप वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो आप डायरेक्शन अगर काउंट करोगे तो आपको गिवन डेटा कैसा मिलेगा. देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं 50/20. सो 5/2 मीटर पर सेकेंड फिर. सो एक्सेलरेशन हो गया -5/2 मीटर पर सेकेंड. क्यों? अपोजिट डायरेक्शन. इफ यू कंसिडर दिस मोशन इक्वेशन, सो वी पुट ऑल दिस डेटा विथ द साइन. ओके, एंड v0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स अ +15 मीटर पर सेकेंड. v कितना हो गया है, 0, और टाइम फाइंड करना है. तो आप इस इक्वेशन को सोचो जिसमें ये डेटा आना चाहिए. तो सिंपल इक्वेशन है मोशन इक्वेशन, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80. सभी डेटा रख दो. v कितना है, 0 इज इक्वल टू 15 a -5/2 इंटू टी. इसमें से t काउंट करो, तो 5/2 इंटू टी इज इक्वल टू 15. 5 3 एंड 2 3 so t is equal to 6 seconds. So after 6 seconds you get this, means this object is coming to rest. Okay, this is our answer, not this example. Okay guys, comes to next example. Example number 5.6 from the textbook exercise. What is the problem? A constant force acting on a body of mass 3 kg. So mass is equal to 3 kg. So this velocity is changed from 2 meter per second to 3.5 meter per second. So initial velocity 2 meter per second, final velocity 3.5 meter per second, and in 25 seconds. So time कितना लगा उसमें, 25. So t is equal to 25 seconds. So direction of the motion of a body remains unchanged. मतलब जब भी फोर्स लग रहा है, अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, कितनी स्पीड से जा रहा है, v0 से. यहाँ पे ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से मोशन स्टार्ट हुई थी, t इज इक्वल टू 25 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई v. तो डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहे, मतलब कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स वही सेम डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन भी यही डायरेक्शन में है. ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है. सो वी हैव टू फाइंडिंग आउट दिस फोर्स. व्हाट इज दिस फोर्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? कौन सी डायरेक्शन में फोर्स होगा? जिस डायरेक्शन मोशन है, इज इक्वल टू direction of motion. Why? Because it's here this given data. The direction of motion does not change. मतलब वही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 2 से 3.5, 2 से 3.5. इट्स मींस द फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन. अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, दैट इज अ रिटार्डिंग फोर्स. लेकिन अभी सेम डायरेक्शन है तो ऐसा कुछ आंसर रहेगा. ठीक है. And what is this force? What is the magnitude of force? So F is equal to ma. So m given है but a unknown है. इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1. जो गिवन डेटा है v, v0, t और a unknown,
तो आप इस इक्वेशन को आप अगर यहाँ पे लिखते हो इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो आंसर क्या होगा, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। इसमें से a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस v0 अपॉन t, ऐसे, ठीक है। तो सभी डेटा गिवन है, सभी डेटा यहाँ पे रख दो। v कितना है 3.5 माइनस 2, 3.5 माइनस 2 अपॉन t, t इज 25, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाई करो, a मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन नंबर 1, फोर्स मिल जाएगा। सो दैट इज अ मैग्नीट्यूड इन न्यूटन, ओके। सो कैलकुलेशन इज इन होमवर्क, कैलकुलेशन में होमवर्क करना, ठीक है। तो पूरा एग्जांपल नोट कर लो। Okay guys, next example is example number 5.7 from the textbook exercise. A body of mass 5 kg. So mass of the body is what, 5 kg, acted upon by two perpendicular forces. Underline this, two perpendicular forces, 8 Newton and 6 Newton. Consider F1 is 8 and F2 is 6 Newton. Then you just take, this is the suppose body, okay, one force along suppose here, then the second force is applied along here, okay, F1 and F2, both are perpendicular to each other in this way. So what we have to find here, we have to find the magnitude and direction of the acceleration, magnitude and direction of acceleration. Now the two forces are applied on a body, so what is this resultant force? The resultant force is given somewhere here. So let's we write this answer, resultant force, both are perpendicular to each other, so F is equal to what, under root first component square plus second component square, like this, that is like x and y axis. Consider these two forces are acting along x and y axis, then resultant is given in this way. When the two perpendicular vector you have, then you want a resultant, then this is the case, okay, under root f1 square plus f2 under root a square plus b square, like this. So you just taking the square 8 and 6, so it is equal to under root 8 square plus 6 square, 8 square 64 plus 6 square 36, 100. So F is equal to 10 Newton. But actually we have to finding out the acceleration. तो अगर acceleration चाहिए तो acceleration A is equal to net force upon mass. Mass is given, force is known right now. So 10 upon 5, acceleration is 2 meter per second square. But that is what actually magnitude of acceleration. Direction, how we get this answer? So whatever the direction of force, the same direction of acceleration. Direction of force and direction of acceleration, both are always same. So consider this is the direction of acceleration, okay. You just take this angle of this acceleration direction with the f1 is supposed to be theta. आप f2 के साथ भी रख सकते हैं, f1 के साथ भी रख सकते हैं, it depends on you, okay. So from figure what we have to write down, so tan theta is equal to opponent upon adjacent. Opponent is this, adjacent is this. Opponent means f2, adjacent means f1. So answer is what, f2 upon f1. So what is f2? 6 upon 8, 6 upon 8, ऐसा ही कुछ हुआ, okay. 6 upon 8 means what, 3 upon 4. If you see the trigonometry table, then that value is a non-value for us, okay. So from this theta is equal to 37 degree. ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan inverse 3/4. Thus both are correct answer, but here you must be right from this angle of resultant with f1, angle of resultant with f1. So यहाँ पे और लिखना पड़ेगा angle of resultant with f1, okay. f2 के साथ भी थीटा आप अप्लाई कर सकते हो, सेम इक्वेशन, ठीक है. So this is the direction and here it is a magnitude. So by this way we just getting this answer, okay. Note down this example. Okay guys, example number 5.8 from the textbook exercise. What is the problem statement? The driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km/h sees a child standing in the middle of the road and brings the vehicle within the 40 seconds to save the child. मतलब ऐसा कोई डेटा गिवन है, 36 km/h से थ्री व्हीलर जा रहा है,
4 सेकेंड में उसको रेस पे लाना है, मतलब उसको रिटार्डिंग फोर्स चाहिए। तो कितने वेलोसिटी कितनी हुई 4 0। मतलब ऐसा क्यों, देखो मान लो कि ये 3 व्हीलर है, ठीक है, दैट इज व्हाट एक्चुअली 3 व्हीलर। So this vehicle is moving with a V naught. Here this child is standing at in the road. So after covering some distance, this 3 wheeler is coming to race. मतलब यहाँ पे वो रेस पे आ गया। क्यों? ओके, इस साइड को सेव करने, मतलब एक्सीडेंट ना हो इसलिए ऐसा कुछ किया हुआ है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज गिवन टू व्हेन आफ्टर कवरिंग दिस डिस्टेंस हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, t is equal to 4 seconds, and here consider suppose this brake is applied at t is equal to 0 seconds. So due to this brake some retarding force is produced, and we have to find here what is the average retarding force on a vehicle. So we find this force is equal to force matlab what, F is equal to ma is equal to what. Consider it's equation number 1. That is what equation number 1. So you have this type of data, and acceleration, you put acceleration is equal to force upon m. Okay, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, acceleration is equal to force upon m. एक्चुअली रिटार्डिंग फोर्स है तो acceleration इस डायरेक्शन में लगने वाला है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब आपका जो भी फोर्स आएगा वो नेगेटिव रहेगा, ऑपोजिट है इसलिए। तो नेगेटिव का मीनिंग है, लास्ट सेशन में जो एग्जांपल देखा उसमें हमने मतलब जो एग्जांपल लास्ट में सॉल्व किया उसमें भी था कि रिटार्डिंग फोर्स है तो नेगेटिव फोर्स होता, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर दे। तो इस जो इक्वेशन है उसमें आप वैल्यू रखो तो v इज इक्वल टू v0 प्लस 80। तो v कितना 0, v0 कितना 36। Now here the some mistake means if you write this 36 then you are doing a mistake. This unit is not SI unit, here kg and second and everything is given to us. Okay, the mass is also given to us actually in a problem. What is this mass? See here the mass is also given in a problem statement. The mass of the 3 wheeler is 400 kg and mass of the driver is 65 kg. मतलब टोटल जो मास कितना है सिस्टम का 400 plus 65. So 465 is a given. Now if you apply this value then you must be convert this in a meter per second. आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो v0 is equal to 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। दैट्स वेरी वेल नोन इक्वेशन। Whenever you want to convert the kilometer to hour to meter per second, you multiply by 5/18. 18 2 जा and 2 5 जा, so आंसर कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। सो यू पुट दिस वैल्यू, ओके। सो 10 प्लस f by m कितना टाइम लगा 4 सेकेंड, सो इंटू 4। f फाइंड करना है तो इसमें f by m को इस साइड रखो, इसको इस साइड लेके आओ। सो -10 हो गया एंड दिस 4 इज इन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे लेके आओ तो फोर्स इज इक्वल टू -10 अपॉन 4 इंटू m कितना है 465। दिस इज योर आंसर इन न्यूटन। ओके, नेगेटिव मीन्स इट इज रिटार्डिंग फोर्स। नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ, दिस फोर्स इज अ रिटार्डिंग फोर्स। Okay, exactly the same type of problem is already solved. So exactly same, only the situation is different. Okay, note करो example को। Our next example number 5.9 from the textbook exercise. A rocket with a lift of mass to 20,000 kg is blasted upward with an initial acceleration 5 meter per second square. So rocket का mass कितना है 20,000 kg. Now this rocket is blasted upward side with a 5 meter per second square acceleration. So calculate the initial thrust of the blast. मतलब initial कितना force चाहिए ऐसे blast करने के लिए। मतलब situation कुछ ऐसे है, देखो यहाँ पे rocket ऐसे, you just consider this is the rocket. Okay, now when this total mass of the rocket is what, m. Total mass of the rocket is what, m. Now this rocket is blasted upward side with some acceleration. Why this rocket is blasted upward side? Because of here this blast, because of this thrust force. So यहाँ पे
ये जो gases है उस due to this combustion gases, this rocket is blasted upward side. Okay, so this combustion gases applied some force on this rocket in upward direction. Which one it is? Normal force supposed to be considered. This normal force is called a thrust force in this situation. In this situation, this normal force which is applied by this combustion gases on this rocket called a thrust force. So what is the thrust? So thrust force is what? Normal force applied by the combustion gases on the rocket. Okay, this force is called a thrust force. You must be remember in this case, thrust force is depends on situation. Which type of situation is given to you, you just apply the condition in this way. Okay, right now this is the thrust force. जो भी मतलब जो भी फोर्स इस रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है उसको वही फोर्स थ्रस्ट फोर्स होगा. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है? N. So N is a thrust force. आप वहाँ पे कोई भी फोर्स का FT का मतलब जो भी सिंबल तो आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी सिंबल आप लिखना चाहते हो. अगर you see right now I am just consider the symbol is N, then N is a thrust force. If you consider the symbol is F, then F is a thrust force. Do you understand? Symbol it depends on you, but what is the meaning of thrust force? That's what. That is the meaning of a thrust force, and you must be understand it. What is this thrust? So you have to find the N here. So that is what for you. For you, this is the thrust. So you have to find the N. So simple, yeah. This objects right now, this is the objects is moving with some acceleration A. This object is moving with some acceleration A. Then which law is applied? First law or second law? So simple. If any object is moving with acceleration, then there is always second law is applied, and here one another force is applied. Which one? Mg. Now you draw the FBD only. Okay, so FBD of this one. So this, consider this is a rocket. This is what? Actually ऐसा ही होगा, लेकिन FBD के लिए ऐसे small objects में draw करते हैं. ठीक है, so that is a rocket. Draw the forces. Upward force N, downward force mg, acceleration upward. Okay, so as per the Newton second law, F net is equal to what? Ma, force in the direction of acceleration minus force in the opposite direction of acceleration is equal to what? F net. So N and A both have a same direction, so N is positive. A and mg both have opposite direction, so mg is negative. So N minus mg is equal to what? Ma. So what is this N? You have to find the N here. So what is this N? N is equal to mg plus ma. Now you see the situation. M is given, A is given. Take g is equal to supposed to be 10 meter per second square. Okay, so you put this all this value here and you get this answer. Okay, so calculation is in homework. आप कैलकुलेट अपने आप कर लेना, लेकिन कंसेप्ट कुछ ऐसे अप्लाई होता है. क्लियर है सबको? तो पूरा मतलब इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको पूरा कंसेप्ट याद रखना है. ओके, नोट दिस एग्जांपल. Okay guys, comes to this next example. Example number 5.10 from the textbook exercise. A body of mass 0.40 kg. What is the mass of the body? M is equal to 0.40 kg. Mass of 0.40 kg. Moving initially with a constant speed 10 meter per second, and to the north is subject to a constant force of 8 Newton directed towards the south for 30 seconds. मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है. देखो, you consider the direction for more understanding. North, south, east, west. अब मान लो कि बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, इनिशियली समवेयर हियर दिस बॉडी. नाउ body is moving initially with the some constant speed. So what is this initial speed generally denoted by this one? So v naught. So what is this v naught? It is given as a 10 meter per second. So that is a 10 meter per second. But at t is equal to 0 time initially. Underline this one.
At that time, whenever the situation is considered, at that time this force of 8 Newton is applied on the body in a south direction. So here this force is applied in this direction. अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है 8 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, मतलब कि 8 अपॉन 0.40. Okay, so 80 upon 4, so 80 upon 4, so 20 meter per second square. So this one is the acceleration of the body, but it's you just see the direction. Direction of acceleration is equal to direction of force. Now force is applied along a south direction, so acceleration is also along a south direction, like this. एक्सेलरेशन भी यही होगा. तो ऐसे कुछ सिचुएशन गिवन है, ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस नेक्स्ट वन, एंड फॉर 30 सेकेंड ए फोर्स लग रहा है, लेकिन कितने टाइम तक, ओनली फॉर 40 सेकेंड. आफ्टर 40 सेकेंड, सॉरी 30, दिस फोर्स इज अप्लाइड ओनली फॉर 30 सेकेंड. सॉरी, हाउ मच, 30 सेकेंड. सो 30 सेकेंड के लिए ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके बाद फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. ओके, सो नाउ यू कंसिडर दिस फोर्स इज अप्लाइड, this force is applied up to 30 second, up to 30, मतलब 0 से अगर स्टार्ट किया तो अभी 30 सेकेंड तक अप्लाई होने वाला है. उसके बाद मतलब आप 31 सेकेंड पे काउंट करोगे तो 40 हो जाएगा. ऐसी सिचुएशन, इफ यू कंसिडर दिस मोमेंट आफ्टर 30 सेकेंड, देन फोर्स इज इक्वल टू 0. If you consider the moment after 30 seconds, that means what, force is equal to 0. Okay, this type of situation. Now take the instant at the force is applied, t is equal to 0. मतलब ए जो इंस्टेंट जब फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको आप मान लो कितना टाइम है, 0 सेकेंड. कितना टाइम है, 0 सेकेंड. ओके, सो 0 सेकेंड से 30 सेकेंड तक फोर्स अप्लाई हो रहा है. बिफोर 0 सेकेंड फोर्स इज 0, आफ्टर 30 सेकेंड फोर्स इज 0. Okay, so let's we write something here. When force is 0 at t less than 0 second, f is equal to 0, and at t greater than 30 second, f is equal, मतलब a टाइम पे तो फोर्स कितना है, 0. कितने टाइम तक फोर्स लग रहा है, बिटवीन t is equal to 0 to t is equal to 30 second, force is equal to 8 न्यूटन. मतलब इतने टाइम तक फोर्स लग रहा है. ऐसी कुछ सिचुएशन है. जैसे अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं है कि कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम है. लेस देन 0 पे फोर्स 0 है, ग्रेटर देन 30 पे फोर्स 0 है, और इतने इंटरवल टाइम में ही फोर्स लग रहा है. ऐसी कुछ सिचुएशन. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड दिस, कंसिडर दिस बॉडी एट दिस टाइम इज x इज इक्वल टू 0. मतलब यहाँ पे जो बॉडी है उसकी पोजीशन आप मान लो कि x इज इक्वल टू 0, मतलब कि आप इसको प्लस x ले लो और इसको, एक्चुअली तो इस डायरेक्शन में जनरली y कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे x है तो चलो मान लो कि x है, ये पॉजिटिव x है तो फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव x हो जाएगा. वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में x है इसलिए हमने x काउंट किया है, ठीक है. कुछ नहीं दिया तो हम इसको y और इसको नेगेटिव y बोलते हैं, बट अभी x दिया हुआ है, गिवन है, तो दैट्स वन इज अ पॉजिटिव x, अपोजिट इज अ नेगेटिव x. ओके, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, प्रेडिक्ट द पोजीशन, अंडरलाइन पोजीशन. सो यू हैव टू प्रेडिक्ट द पोजीशन एट, आपको पोजीशन फाइंड करने हैं, बट कौन से टाइम पे पोजीशन चाहिए, फाइंड x, पोजीशन मतलब x ही हुई ना, फाइंड x एट कौन से टाइम है पर चाहिए, -5, 25 और 100 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 25 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 100 सेकेंड. आपको a फाइंड करना है, ठीक है. दैट इज योर क्वेश्चन. मतलब क्वेश्चन ही इतना लंबा है, मतलब समझना पड़ेगा कि क्या फाइंड करना है, कैसे गिवन है. सो ये पूरी सिचुएशन में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Thus object is somewhere here at t is equal to 0, position is what, x is equal to 0. Thus initial speed of this object, already object is moving with a 10 meter per second, so we call it is initial speed. At the time t is equal to 0, some force F is equal to 8 Newton is applied.
Some at the time t is equal to 0, force F is equal to what? 8 Newton is applied. Now object is moving towards the north, but force is applied towards the south side. So here the acceleration of this body is 20 meter per second along the south. वो साउथ डायरेक्शन में इतना एक्सेलरेशन है. वैसे कुछ मोशन गिवन है. आज जब फोर्स लग रहा है वो 30 सेकेंड के लिए लग रहा है. मतलब कि बिफोर whatever this condition you have to consider, before this time objects moving with a zero force, and after 30 seconds again objects is moving with a zero force. Zero force means what is this meaning of the zero force? जीरो फोर्स का मीनिंग आप क्या निकाल सकते हो कि इस केस में वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हो. ओके और इस केस में बिटवीन 0 to 30 सेकेंड आपको कौन सा लॉ अप्लाई करना है? न्यूटन सेकेंड लॉ. क्यों? वहां पे फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पे एक्सेलरेटिंग मोशन का इक्वेशन आएगा, यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा. ठीक है. नाउ द सिचुएशन इज व्हाट? t लेस देन 0. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ t लेस देन 0? बिकॉज वी कंसीडर द टाइम नेवर नेगेटिव. आप क्या काउंट करते हो? टाइम नेगेटिव कभी होता ही नहीं. यहाँ पे तो नेगेटिव हुआ t लेस देन 0, तो नेगेटिव माइनस होता है. यहाँ पे भी है t इज इक्वल टू -5 सेकेंड. सो माइनस मीन्स व्हाट हियर? यू कंसिडर द सपोज यू कंसिडर राइट नाउ जस्ट टाइम इज सपोज टू बी 12 o'clock. यू जस्ट कंसिडर टाइम इज सपोज व्हाट? 12 o'clock. तो आप 11:30 काउंट करते हो तो बिफोर 30 मिनट्स, और 12:30 काउंट करते हो तो आफ्टर 30 मिनट्स. तो सिचुएशन इज लाइक दैट. बिफोर 30 मिनट्स मीन्स -30 मिनट्स. 12 o'clock को आप 0 बोल के चलो, 0 मान के चलो. If 12 o'clock is a reference time for us, it is 0. Then before 12 o'clock negative time, after 12 o'clock positive. Negative means what? Time before the moment, and positive means what? Time after the moment. मतलब जिस मोमेंट पे आपने 0 काउंट किया है उससे पहले का टाइम जो उसको नेगेटिव बोलो, उसके बाद का जो टाइम उसको पॉजिटिव बोलो. इसका मीनिंग ऐसा है. -5 सेकेंड मीन्स व्हाट? व्हेनेवर यू कंसिडर द 0 सेकेंड बिफोर इट. मतलब कि कुछ सिचुएशन अगर आपको, इसको हम प्रॉब्लम्स को ए बोलते हैं, ए प्रॉब्लम को हम बी बोलते हैं, और ए प्रॉब्लम को हम सी बोलते हैं. ठीक है. तो पहले ए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. चलो फर्स्ट प्रॉब्लम है पोजिशन एट t इज इक्वल टू -5 मीन्स बिफोर t. -5 मीन्स बिफोर द 0. मतलब बिफोर दिस 0 ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर. ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे था. t इज इक्वल टू -5 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे था, पता नहीं कहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कहीं पे था. और कितने से मूव हो रहा था वो? v0 से. यहाँ पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना. देखो बिफोर टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज व्हाट? कांस्टेंट. सो t इज इक्वल टू -5 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 0 सेकेंड अगर आप काउंट करते हो, t इज इक्वल टू -5 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 0 सेकेंड अगर आप काउंट करते हो, तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट. यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो उसकी पोजीशन कैसे आते हैं? इफ वेलोसिटी कांस्टेंट देन x इज इक्वल टू vt, देन x इज इक्वल टू व्हाट? vt. कितनी वेलोसिटी है उसके पास? v0. तो v0t. ओके. तो पुट दिस वैल्यू. तो v0 कितना है? v0 कहाँ पे लिया? यस v0 10, एंड टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड. सो आंसर कितना आया? 50 मीटर. बट कहाँ पे 50 मीटर? यहाँ पे. मतलब इन अ साउथ डायरेक्शन. साउथ डायरेक्शन मीन्स व्हाट? -x. साउथ डायरेक्शन मीन्स व्हाट? -x. सो एक्चुअली वी राइट द आंसर x इज इक्वल टू 50 मीटर इन साउथ डायरेक्शन. यहां से यहां तक का टाइम तो 5 सेकेंड लगता है. वेलोसिटी 10 है तो 10 इंटू सी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. आई एम जस्ट कंसिडर स्पीड इंटू टाइम. ओनली कंसिडर द मैग्नीट्यूड. ओनली कंसिडर द मैग्नीट्यूड. ओके. बट आपको ऐसा लिखना होगा 50 मीटर इन साउथ डायरेक्शन. यहाँ पे कहीं पे होगा ना 50 मीटर इन साउथ डायरेक्शन. ओके. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू -50 मीटर. बट -50 मीटर पता नहीं, क्योंकि इसको ही पॉजिटिव हमने लिया, आप इसको नेगेटिव लोगे तो +50 आएगा. सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो. क्लियर है? 50 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, x इज इक्वल टू -50 मीटर. बट आप ए लिखते हो तो यहाँ पे इंडिकेट्स होना चाहिए कि ये माइनस डायरेक्शन है.
Okay, so that is the first one. Now comes the second problem. Position at t is equal to 25 second. Just tell me at 25 second object's motion is which one? Constant accelerating or constant velocity? So see 0 से 30 second में 25 आएगा. So at t is equal to 25 second object's motion is constant accelerating motion. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या काउंट कर सकते हो? constant accelerating motion इक्वेशन. तो सेकंड पे चलते हैं. डेटा काउंट करो सब भी. तो इनिशियल पोजीशन कौन सी लिए? देखो यहाँ पे x0 0 है, तो x0 इज इक्वल टू 0. x फाइंड करना है. एक्सेलरेशन कितना मिला? 20, बट डायरेक्शन नेगेटिव है तो -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनिशियल स्पीड कितनी है? 10 पॉजिटिव डायरेक्शन में है. सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? +10 मीटर पर सेकेंड. और टाइम कितना लगता है? टाइम कितना गिवन है? 25 सेकेंड. सो टाइम इज इक्वल टू 25 सेकेंड. यू थिंक वन इक्वेशन लाइक दिस in which this all those data are present, then very simple answer is what? X minus x0 is equal to v0t plus 1/2 at square. तो x0 तो 0 हो गया. x फाइंड करना है. v0 कितना है? 10. टाइम कितना लगा? 250. सॉरी टाइम 25. टाइम कितना है? 25 प्लस 1/2 ए कितना है? -20. सो -20 टी स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर. 25 square. If you count this answer, then your answer is what? After calculating this answer, you get this answer is equal to -6000. You just calculate this, you get this -6000 meter. What is this -6000? Again, -6000 means this positive, this negative, means object is somewhere here in south direction. Okay, so you just write down the answer in this format. X is equal to 6000 meter in south direction. Okay, so that is our answer. Now the third one, position at t is equal to 100. Position at t is equal to 100. Tell me at t in this 100 second this object is moving with a constant velocity or constant acceleration. So आप अगर 100 सेकेंड काउंट करते हो तो 0 से 30 कांस्टेंट एक्सेलरेशन और 30 से 100 कांस्टेंट वेलोसिटी. यहाँ पे आपको दो पार्ट्स बनाने हैं. Here you consider the two parts. Okay, so means we divide this problem in the two sections. So here we divide the problem in two sections. Why? Because 0 to 30 acceleration or 30 to 100 velocity. So let's we just divide this. We just draw the separate figure for both. That's the first section, that's the second section. Okay, तो मतलब फर्स्ट सेक्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो कुछ ऐसा है. यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है. कितने से जा रहा है? v0 से जा रहा है. यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है. और मान लो कि ऐसे जाके एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ना, तो ऐसे जाके ऑब्जेक्ट्स वापस इस डायरेक्शन में यहाँ पे कहीं पे पहुँच गया. उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v. और at इज इक्वल टू 0 की पोजीशन है. at इज इक्वल टू आप 30 की पोजीशन ले लो. तो मतलब ए जो डिस्टेंस, ए जो पोजीशन है उसको आप x1 मान के चलो. ए जो पोजीशन है वो क्या मान के चलो? x1. तो ए कितने पोजीशन के? 0 to 30 सेकेंड. सो फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 30 सेकेंड a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. आपको यहाँ पे लेना होगा. इतने टाइम तक इतना है. ओके, नाउ t इज इक्वल टू 30 टू t इज इक्वल टू 100 सेकेंड. अगर आप a काउंट करते हो तो कितना टोटल टाइम स्पान हुआ? 70 सेकेंड की मोशन हुई 30 से 100. तो उसमें कैसी सिचुएशन होगी? देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो 30 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो मतलब 30 सेकेंड पे यहाँ पे x1 पे तो था ही. मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया t इज इक्वल टू 100 सेकेंड में, तो a मान लो कि x2 है. जैसे x1 है, यहाँ पे आप x2 मान के चलो. यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी? हो गई थी v. तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v थी. अभी वो v से कॉन्स्टेंटली मूव करेगा.
कांस्टेंट v से, तो यहाँ पे ए एक्सेलरेटिंग मोशन हुई और ए वेलोसिटी मोशन हुई, और दोनों को आपको डिफरेंट मतलब सेपरेट काउंट करना है। हियर दस v इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो इसमें तो यही इक्वेशन अप्लाई होने वाला है। चलो यही इक्वेशन अप्लाई करते हैं फिर से। तो x1 माइनस x0 इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 a t²। ठीक है, x0 तो 0 है, यहाँ पे x1 लिए, मैंने x1 लिया है। चलो यहाँ पे x लेते हैं, तो x क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू v0 कितना 10। नाउ टाइम इज व्हाट 30, सो 30 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन यस 20, बट डायरेक्शन नेगेटिव है, तो -20 इंटू 30²। तो इसका पूरा कैलकुलेशन करो तो आपका आंसर हो जाएगा x1 इज इक्वल टू -8700 मीटर, -87 है ना, -8700 मीटर। ये क्या हो जाएगा, -8700 मीटर, ऐसा कुछ हुआ 30 सेकेंड में। चलो तो ये तो फर्स्ट आंसर मिला, x1 इतना कवर हुआ। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड क्या इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव साइड में। और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी अगर आपको यहाँ पे फाइंड करनी है तो v इज इक्वल टू v0 प्लस at ले लो, तो v इज इक्वल टू v0 कितना है 10, एक्सेलरेशन -20, टाइम लगा 30, सो 10 माइनस 600, सो v हो जाएगा -590 मीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब डायरेक्शन देखो कौन सी है, साउथ, और साउथ को आपने क्या बोला है, नेगेटिव, तो ऐसा कुछ आंसर होगा। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी -590 मीटर पर सेकेंड। अभी ऑब्जेक्ट जो है वो इस वेलोसिटी से मूव करने वाला है, कितनी सेकेंड तक, 70 सेकेंड तक। फॉर व्हाट टाइम दिस ऑब्जेक्ट मूविंग विद दिस वेलोसिटी, 70 सेकेंड। तो फिर कितना डिस्टेंस कवर हुआ, x2, टोटल x2 कितना हो जाएगा, देखो सिंपल है। नाउ हियर वी अप्लाई v इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो x2 इज इक्वल टू v इंटू टी। v ये नहीं लेना है, यहाँ पे था, अभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी कितनी, v, सो नाउ यू पुट दिस वन, सो आंसर इज व्हाट -590, कितनी सेकेंड हुई, 70 सेकेंड। तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन, यू गेट दिस आंसर -41300 मीटर, सो दिस मच ऑफ x2। सो व्हाट इज द पोजीशन एक्चुअली, सो x1 इतना हुआ, x2 इतना हुआ, तो इनिशियल पोजीशन ए थी, तो ये पूरी पोजीशन अगर आप काउंट करते हो तो क्या आएगी, x1 प्लस x2। सो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 100 सेकेंड अगर आपको फाइंड करनी है तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। दोनों को ही आप काउंट करो, x1 a है, x2 a है, तो फाइनल आंसर आपका रहेगा -50,000 मीटर, -50,000 मीटर, ऐसा कुछ 50,000 ही हुआ ना, यस 50,000, तो ऐसा कुछ आंसर आता है। तो यहाँ पे भी ऐसा माइनस मतलब कौन सी डायरेक्शन, साउथ ही हुई, तो यहाँ पे भी लिखना होगा अलोंग साउथ, अलोंग साउथ। ये भी साउथ में है, ये भी साउथ में है, सभी साउथ में आया, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव एक्स पे कहीं पे होगा, मतलब कि एक्स जो है साउथ में कहीं पे होगा, जहाँ से आपने उसको कंसिडर किया हुआ है। यहाँ से अगर इस साइड जा रहे हो तो नॉर्थ आएगा, इस साइड जा रहे हो तो साउथ है, लेकिन सभी में साउथ ही आया, ठीक है, नेगेटिव आंसर मतलब साउथ। तो पूरा एग्जाम्पल काफ़ी डिफरेंट है, और आप इस एग्जाम्पल को स्टार करके चलो, मतलब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में कैसे आपको न्यूटन्स लॉ से अप्लाई करना है, कैसे आपको इक्वेशन अप्लाई करना है, वही सीखना है। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेटिंग मोशन, मिक्सअप दी हुई है, तो आप सब कुछ यहाँ पे अप्लाई करना सीखना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल ऐसे हमको याद रखना है, यू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द होल कंसेप्ट, ओके, नॉट दिस एग्जाम्पल।